ओके, सेशन शुरू करने से पहले मैं मोक्षा के बारे में बता दूं। वेलकम एवरीवन ऑन बिहाफ ऑफ मोक्षा कनाडा फाउंडेशन, or as you know that Moksha Canada Foundation is a non-profit organization where our vision is to connect, engage and empower communities to become healthy and to create a positive change in the social, cultural and economic development of all residents in the neighborhood. तो इस सिलसिले में जब हम गुड हेल्थ की और सबके भले की बात करते हैं, तो I think sometimes we should meditate for some time wherein we only talk about and think about welfare of all in this whole universe, welfare of everybody, everyone's welfare, everyone's good being. So आप eye rotation कर लीजिए, please take off your glasses. Eye rotation 12 times right clockwise, and then we'll do 12 times anti-clockwise. Okay, so let's start. Sir Jamil sir, आप glasses, can you please take off your glasses? सुंदर जी अपने glasses उतार लो please. Okay, so eye rotation we do 12 times clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Anti-clockwise 1, 2, 3, 4, कपड़े ले आए 5, कपड़े ले 6, आए 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Let us invoke to the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, to all the great, great ones. We hereby humbly invoke to bless us, to sit together and to be able to bless the whole universe, the whole world, all the beings on this earth for their well-being. So please put your hands in your laps, palm facing upwards. Let us assume that the earth is in the shape of a round ball in front of us. हमारे सामने जो धरती है एक बॉल की तरह है, आप ऐसा इमेजिन कीजिए और सोचिए कि उस बॉल के अंदर, उस धरती के अंदर जो भी लिविंग बीइंग्स रहते हैं, चाहे वो जानवर हैं, प्लांट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, इंसान हैं, सब बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ मिलकर रह रहे हैं। जो हम लोगों ने, हम इंसानों ने इस धरती के साथ खिलवाड़ किया है, कपड़े ऊपर इस हैं, धरती को मैं अब बाहर जा रही हूँ। किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचाया है और धरती के साथ साथ दोनों धरती साथ हो ना की हवा, धरती के पानी, धरती के पेड़ पौधे, सभी को थोड़ा थोड़ा जो नुकसान पहुंचाया है, कहीं किसी किसी जगह बहुत ज्यादा भी नुकसान पहुंचाया है, जिससे कि इस वक्त हम पूरे संसार में लोग दुखी हैं, परेशान हैं, सफर कर रहे हैं, परेशानियां झेल रहे हैं। हम ऐसा सोचें कि ये जो हमने नुकसान पहुंचाया है, ये वापस अच्छाई की तरफ बढ़ चुका है। हम धरती को ब्लेस कर रहे हैं एंड सभी बीइंग्स को ब्लेस कर रहे हैं।
आप प्लीज ब्लेसिंग पोजीशन में आ जाइए ऐसे, और उस वॉल को आंखें बंद करके इमेजिन करते रहिए, और इमेजिन के उस धरती पर जितने भी बीइंग्स हैं, लिविंग बीइंग्स, उनको आप सच्चे दिल से और सही सोच से ब्लेस कर रहे हैं, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, उनके लिए दुआ कर रहे हैं कि उनका अच्छा हो। May all the sentient beings on this Mother Earth live in peace and harmony with each other. May there be divine peace, divine happiness, divine love, prosperity, understanding, harmony, spirit of forgiveness, spirit of togetherness around us. May all the sentient beings live in peace and lots of happiness. May all the living beings understand the importance of peaceful coexistence. May we all humans, as spiritual beings, understand that for our spiritual survival, for our spiritual growth, for our spiritual upliftment, we need to understand the importance of each and every life on this earth. May all the living beings be blessed with divine forgiveness, spirit of forgiveness. Let us seek forgiveness from those whom we might have hurt at any point of time. हम उन सब से माफी मांगे जिनको कभी हमने जाने अनजाने दुख पहुंचाया है, किसी को परेशानी दी है। हम उन सब से माफी मांगते हैं और हम उन सब को माफ करते हैं, क्योंकि जब कोई हमें चोट पहुंचाता है तो हम उसके लिए अच्छा नहीं सोचते, तो हम उनका जो नुकसान करते हैं उसके लिए माफी मांगते हैं। और जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है, हमें दुख दिया है, हमें किसी ना किसी परेशानी को झेलने के लिए मजबूर किया है, उनको हम माफ करते हैं, सच्चे दिल से माफ करते हैं। We are all humans. We all make mistakes in the process of spiritual growth. We all make mistakes, but we should learn from our mistakes. हम ऐसा सोचें कि हम गलतियां तो कर रहे हैं, पर उन गलतियों से हम सबक भी ले रहे हैं, ताकि वो गलतियां हम दोहराए नहीं, रिपीट ना करें। और इससे हमारी जो एक रूहानियत है वो और ऊपर की ओर बढ़ती जाएगी और उसमें और तरक्की होगी। हम उस ईश्वर के, भगवान के, वाहिगुरु के, गॉड के, अल्लाह के और नजदीक पहुंच सकते हैं, माफी मांगने में और माफ करने में। खुद को भी माफ करें, क्योंकि इस सब प्रोसेस के दौरान हम खुद को भी चोट पहुंचाते हैं। हम खुद को भी माफ करें। लेट अस फॉरगिव ऑल, और सभी को ढेर सारा आशीर्वाद दें। सभी के लिए शांति, पीस की, अमन की बात सोचें। जब हम दूसरों का भला करते हैं, दूसरों के भले की बात सोचते हैं, दूसरों का भले की बात महसूस करते हैं, इन तीनों कंडीशंस में हमारा भला होता है। When we bless others, we get blessed. Let us keep blessing the Mother Earth and all the sentient beings of this earth to be blessed with divine peace and love and happiness and lots of understanding to live with each other in harmony, in peace, in understanding. Let there be no differences of caste, creed, religion, region, countries, boundaries,
communities. Let all of us think alike, be alike, as we all have emerged from one light. Divine oneness. Divine oneness be with all. Let us all understand. We are all one. We are all one. Let us be united and let us live in peace. May divine peace be with everyone. Gently open your eyes. Put your hands in your laps with palm facing downwards. And imagine that all the blessings that you have received from the divine, you are sharing with the Mother Earth, as we need to bless the earth a lot. The Mother Earth is so kind for allowing us to live, to breathe, for the good air, good water, good flora, fauna, vegetation, plants, food. Thank you, Mother Earth. Let Mother Earth be rejuvenated, revitalized, regenerated, and Mother Earth be very, very healthy for our benefit, for us. Thank you, Mother Earth. Thank you so much. And for our grounding also, we need to bless Mother Earth for letting us stay grounded. Let us again thank the Supreme God. Hands at your heart chakra, hands folded, हाथ जोड़ लीजिए. To the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, to all the spiritual teachers, to all the prophets, all the gurus, all the great, great ones, thank you for blessing us these beautiful energies where we could bless the Mother Earth and all the beings living on this earth. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. All right, thank you so much. You can gently rub your hands and put them, rub your body very gently, very smoothly. Thank you so much for these beautiful energies. When in group, the energies are much, much better and they are wider. The aura becomes very wide in the group. Thank you so much. तो आज हम आज का सेशन शुरू करते हैं. ठीक है सर, गुरुदत्त जी? जरूर जी, जरूर. आज के हमारे स्पीकर हमारे रिस्पेक्टेड गुरुदत्त जी हैं और गुरुदत्त जी के बारे में हम जानते हैं वो बहुत पिछले कितने ही सालों से होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं. ही इज अ वेल नोन होम्योपैथिक डॉक्टर इन द GTA और वो यहाँ पर अबोहर में, इंडिया में अबोहर में होम्योपैथी कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं और एज अ टीचर और एज अ प्रैक्टिशनर उनका बहुत वाइड एक्सपीरियंस है और वो ऐसी हमारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, बीमारियों को ठीक करने की बात करते हैं. उनके पास इतने सॉल्यूशंस हैं कि हमारे लिए बहुत अच्छी बातें हैं. हमारी खुशकिस्मती है कि वो हमारे लिए सेशंस लेते हैं और हमें इन चीज़ों के बारे में नॉलेज देते हैं और हेल्दी रहने की, कैसे हेल्दी रहा जा सकता है, इसके बारे में हमें गाइड करते हैं. वैसे नींद से आज का जो टॉपिक है इनका स्लीपिंग डिसऑर्डर पे बात करेंगे. तो नींद से मुझे वो गाने बड़े सारे याद आ रहे हैं. मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, है ना. ओ नींद ना मुझको आए, दिल मेरा घबराए,
चुपके चुपके कोई कोई आके खोया प्यार प्यार जगाए। जगाए। चलिए, तो इस नींद ना आए की बात पर अभी हम सीरियस बातें सुनते हैं, कि और नींद आए। फोन दो। जो टिप्स देंगे हमें गुरुदत्त जी कि नींद नहीं आए तो क्या करना चाहिए, और क्यों नींद हमारे लिए बहुत जरूरी है, और नींद को रेगुलेट कैसे किया जा सकता है। वेलकम गुरुदत्त जी। बहुत बहुत धन्यवाद मीता जी। आपने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, तो ज़्यादा बोलने से फिर सुनने वालों की एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और बहुत ज़्यादा फिर जिम्मेवारी बन जाती है बोलने वाले की भी। नहीं, आज ऐसे किसी वजह से जो अनु जी नहीं आ पाई, और वो डिक्टेट जो है स्लाइड्स नहीं चल पाएंगी, और वैसे सुनील जी कह रहे हैं कि मैं ट्राई कर रहा हूँ, अगर वो चल जी पड़े तो ठीक है। जी तो आज का जो सेशन है, जो हमारा टॉपिक है, वो स्लीप के ऊपर है। मैं नॉर्मल भाषा में या नॉर्मल आदमी की तरह ये स्लीप, हालांकि जो हम स्कूल में कॉलेज में बच्चों को पढ़ाते हैं वो कुछ और तरह से रहता है। उसमें कोई मेडिकल टर्म्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा जो है यूज़ करते हैं, जो कि कह लो कि पेशेंट को ना समझ लगे, तो ऐसी डॉक्टर आपस में बात करते हैं। ये कभी बोर्ड बैठता है किसी के ऊपर, तो मैं वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करूँगा। मैं तो यह कि ये नींद है ना, इसे समझने की बहुत बड़ी ज़रूरत है कि नींद है क्या चीज़। नींद कुदरत का एक वो तोहफा है हमें, जिससे कि जिसको मिला है वो उसकी कदर नहीं करता। वो कदर इसलिए नहीं करता, किस तरह से नहीं करता, कि कोई भी पैटर्न नहीं सोने का। रात को लेट हो गए, कोई बात नहीं जी, आज वीकेंड है, सो रात को 2 बजे तक बैठ रहे हैं, 4 बजे सुबह सो रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे देखे मैंने, वीकेंड पे चले जाते, खासकर आजकल जो बच्चे रात को लेट तक बैठ के पढ़ रहे हैं 2 बजे तक। लेकिन ये जो एक अपने हमारे क्या मतलब, जिससे यूनिवर्सल कहावत जो है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स द मैन हेल्दी एंड वाइज, कि जल्दी, जितनी जल्दी आप, कहने का मतलब यह है कि आप सूरज छिपने के थोड़ी देर बाद, यानी कि आमतौर पे जो 10 बजे का टाइम है, मैं खुद नहीं सोता वैसे, बता देता हूँ, क्योंकि वो आदत पड़ी बचपन की। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो रात के लेट, ज्यादातर आदत थी लेट पढ़ने की। हाँ, तो नींद जो है, बात कर रहे थे, कुदरत का एक ऐसा अनमोल वरदान है हमें, कि जिसे हम कबूल करें, और जब नींद आए तो, जब उसका जो वक्त है, भगवान ने देखिए रात क्यों बनाई। रात बनाई हमें सोने के लिए, दिन बनाया सारा दिन काम करने के लिए। जी हम बातें बहुत करते हैं नेचर के पास ये वो, लेकिन वो सारी हिपोक्रेसी है हमारी। मैं जनरली कहूँ, नेचर को तो हम फॉलो ही नहीं करते अच्छी तरह से। वैसे बात कर देंगे ये नेचुरल है जी, ये नहीं है नेचुरल। नेचर है क्या, ये भी एक समझने वाली बात। किसी भी आप जानवर को ले लो, जिसे हम जानवर कहते हैं, वो भी एक प्राणी है हमारी भाषा में, या जो हमारी सनातन या वैदिक भाषा जो है, इवन इंग्लिश में भी, उन्हें भी जो है, हमें इंग्लिश में उन्हें एनिमल बोलते हैं, और हम लोगों को जो है इंसान को बोला गया सोशल एनिमल है। तो वही प्राणी है। हम 2 पैरों वाले प्राणी हैं, वो कोई 4 के हैं। या इवन पक्षी देख लो, जैसे शाम पड़ती है वो वापस अपने घोंसलों में आ जाते हैं, और आपस में बातें करते हैं और सो जाते हैं। ये जो सोना का क्रम है, मैंने जो नेचर में क्यों किया, नेचर में हम जब सोते हैं तो हमारी बॉडी की पूरी रिपेयर होती है। हमारे जितने तंत्र टूट गए होते हैं दिन भर काम करके, उनकी रिपेयर के लिए वो हमें सुला देता है। जैसे जो कि अगर आपका कंप्यूटर खराब है या आपकी गाड़ी खराब बार है, गई जा रही, तो आप गैराज में ले जाते हो अपनी गाड़ी, या कोई भी जो चीज़ है, कंप्यूटर किसी
मिस्त्री के पास लेके जाते हो, इंजीनियर के पास लेके जाते हो, तो क्या करता है पहला वो काम, वो उसको स्विच ऑफ कर देता है, यानी कि उसको सुला देता है किस्म का, फिर वो उसकी रिपेयर करनी शुरू कर देता है। ऐसे ही जो हमारे अंदर का हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमें सुलाता है, यानी कि हमारी जो जागने वाली चाबी है वो बंद कर देता है, तो उसके बाद में हमारी सारी तरह की रिपेयर शुरू हो जाती है। तो ये जो है, इसलिए इसको नींद को जो है इंग्लिश वर्ड में जैसे कहते हैं ना कि भी घर की सफाई करने वाला, या जो बड़े बड़े होटल है उसमें क्या बोलते हैं, हाउस कीपर। तो ये हाउस कीपिंग का काम करती है हमारी जो नींद है। सो जिनको नींद आती है वो बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करें कि हमें नींद आती है। जिनको नहीं नींद आती आप उनसे पूछो, मुझे बहुत नींद नहीं आती तो कितना डिस्टर्बेंस होती है। मुझे तो बड़ी अच्छी नींद आती है, मेरी वाइफ को नींद नहीं आती, वो मेरे साथ सोती हो, उसको गुस्सा चढ़ा रहता है कि मैं सो क्यों गया। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ उसके ऊपर लेके कि आप किसी को सोते हुए देख लो और आप नहीं सो रहे तो यार ये क्यों सो, आपकी कोशिश होती है कि उसे मैं उठा लूं, वैसे बातें करे, ये क्यों सो रहा है? वही कह रहा हूँ, जो सो रहा है उसे सोने दीजिए। अच्छा, अब जो नींद भी है आमतौर पे कई तरह की नींद होती है। अवतार सिंह जी आए हैं, हमें उनका भी स्वागत है। नमस्कार नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार ताराचंद जी, की हाल चाल है? हाँ जी। हम नींद के तो ऊपर बात सोने कर रहे हैं, वाला आप भी मेरे ख्याल सो के उठ के आ गए, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही उठ जाना चाहिए। तो एक होती जिसे हमें कहते हैं नॉर्मल नींद है, जो 6 से 8 घंटे की है, जिसमें आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, आप लगातार सो रहे हैं। और दूसरी स्लीप है, एक डिस्टर्ब स्लीप होती है, जिसमें कि आपको 2-3 घंटे के बाद आपकी जाग खुल जाती है और फिर आप फिर सो जाते हो, और कभी आप नहीं सो पाते, उसकी आगे बात करेंगे। दूसरी है जो बिल्कुल स्लीप नहीं आती, जिसे कि इंग्लिश भाषा में कहा गया है इंसोमेनिया, या हम हिंदी पंजाबी में अनिंद्रा कह देते हैं। सो ये जो चीज है नींद के बारे में जो अभी आप, सो नींद जो है, जब हमें नींद आ जाती है तो यानी कि हम, होता क्या है जब नींद में हमारी, जैसे कहा ना, रिपेयर ही, बॉडी की रिपेयर भी होती है और मेंटल रिपेयर होती है। हमारे जो माइंड की थकावट हुई होती है वो निकल जाती है हमारी, उससे हमारी जो है ना मेमोरी बढ़ जाती है। अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है तो डेफिनेटली इन द लॉन्ग रन इट विल अफेक्ट योर मेमोरी। और दूसरा, आपको प्रॉपर नींद नहीं आई है तो आपकी दिनचर्या जो है, योर डे टू डे एक्टिविटीज, दैट विल आल्सो गेट हैम्पर्ड। आपकी जो रिफ्लेक्स सिस्टम आपका पूरी तरह से नहीं काम करता। यहाँ आपने देखा कि गाड़ियां चलाते हैं मोस्टली सुबह के टाइम में या शाम के टाइम में, बहुत से एक्सीडेंट हो जाते हैं सुबह के, क्योंकि आपने प्रॉपरली नींद नहीं ली हुई, तो आपका रिफ्लेक्स काम नहीं कर पाता कि मैं अभी ब्रेक लगानी है या क्या करना। कभी कभी कोई उबासी भी आ जाती है तो उसमें भी आपकी आंखें बंद हो जाती है, तो आपको छींक आती है। सो इन चीजों का ड्राइविंग के ऊपर बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो आपकी जो नींद है वो आपको कई तरह से चीजों से बचाती है, गिरने से बचाती है। इवन जैसे आप हाउस होल्ड हैं, अगर घर पे काम कर रही हैं तो उधर आपने चाय रखी है, उधर फुल्का बना रहे हैं, कभी चाय उबल गई या फुल्का जल गया, क्योंकि आपका रिफ्लेक्स सिस्टम उतनी तेजी से काम नहीं कर रहा अगर आपने पूरे रात की अच्छी तरह से नींद नहीं ली। तो ये आपके जो है। अच्छा, फिर दूसरी बात जो पहले ही बात करी थी कि गुस्सा, नींद ना आए तो इंसान के अंदर चिड़चिड़ापन बना रहेगा। वो जो चिड़चिड़ापन है तो वो भी आपको जो है सारा दिन तंग करता है, आपके इमोशन जो है वो चेंज हो जाते हैं, उसकी इक्विलिब्रियम नहीं बनता, आप खुश नहीं होते, वो आपके अंदर ज्यादा। और फिर यही जो चीजें हैं आपको धीरे धीरे कई तरह की और तकलीफें देते हैं। अब आपको नींद अगर प्रॉपर नहीं आ रही है तो आपका वजन भी बढ़ सकता है। वजन कंट्रोल करने के लिए भी नींद का आना बहुत जरूरी है। और फिजिकल इम्यूनिटी जो है वो भी आपकी नींद के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप प्रॉपर नहीं सोए हैं तो आपको मोस्टली, मैंने जो देखा है अपने 50 साल की प्रैक्टिस में, मोस्टली लोगों को अगर प्रॉपर नींद नहीं ली पाए हैं तो उनको जुकाम वगैरह अक्सर हो जाता है, पहला जुकाम। फिर वो जुकाम तो आपको पता ही है, एक
जुकाम से फिर उसका नहीं ध्यान दिया तो कई तरह की और बीमारियां, ब्रोंकाइटिस हो गया, निमोनिया और चीजें हो जाती है। क्योंकि जिसकी जब भी इम्यूनिटी कमजोर होती है तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वही पकड़ा जाता है। इसलिए जो बुजुर्ग हैं उनकी इम्यूनिटी कम होती है, थोड़ा सा जुकाम हुआ तो यही डर रहता है कि कहीं निमोनिया ना हो जाए। इसलिए यहाँ पर जो है आमतौर पे बुजुर्गों को निमोनिया शॉट का जो है वैक्सीनेशन डॉक्टर सलाह देते हैं ताकि आपको निमोनिया ना हो पाए। जहां तक कि अगर किसी ने कोई क्वेश्चन है आपका तो प्लीज यू आर फ्री टू आस्क हिम। मुझे नींद बहुत आती है। इस पे भी आएंगे। नींद मुझे भी बहुत आती है, मैं जब चाहूँ सो जाऊं। मैं दोपहर का खाना खाते ही ना बस 5 मिनट के अंदर अंदर बस मैं बहुत नशा तो पता नहीं क्या होता है। हाँ, Very इसके ऊपर भी आते हैं, आपकी ज्यादा नींद के ऊपर भी। ये मैं कहा कोई क्वेश्चन है किसी को तो जी। रात को भी सोती हूँ, दिन में भी सो जाती हूँ। You are very lucky. और Good. लकी अभी भी मैं ना 3:45 बजे उठी हूँ, उठ के मैं तभी लेट हुई आज। बहुत लकी हैं आप। रियली Yes. रियली गॉड। देखिए जो नींद है, प्रॉपर जो नींद है वो एक इंसान को 6 से 8 घंटे जो, और बच्चे की नींद तो ज्यादा ही होती है। उनको जो इन्फेंट है उनकी जो नींद है वो 20 से 22 घंटे पहले रखी गई है, पहले 6 महीने। जी। तो इस तरह से जो है अभी जो ज्यादा नींद, अब 2 तरह से ज्यादा नींद आती है। एक तो जो बहुत ज्यादा फिजिकल काम करते हैं, बहुत फिजिकल, सुबह से लेकर शाम तक जो है अपने हाथ में गंडासा पकड़ा हुआ है, हथौड़ी पकड़ी हुई है, जो कुछ कर रहे हैं, तो वो लोगों को देखोगे जैसे उनकी ब्रेक होती है 4 घंटे की, 1 घंटे का जो उनको तो वो एकदम से सो लेते हैं क्योंकि बॉडी जो है एकदम से रिपेयर मांगती है। वो क्या ना, ये आपकी बॉडी का अपना एक सिस्टम है जो आपको नींद दिलाता है। जैसे आप रिलैक्स हुए तो और कोई काम नहीं है तो चलो सो जाओ। अब नींद नहीं जो आती उस पर भी बात करेंगे, लेकिन जैसे आप कह रहे नींद बहुत आ जाती है, जिनको डायबिटीज की तकलीफ होगी उनको भी नींद बहुत जल्दी आएगी। नहीं वो नहीं है मुझे। नहीं आपकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ बहन जी, नहीं, मैं जनरल में बात कर रहा हूँ कि जिनको डायबिटीज होती है, क्योंकि जो डायबिटीज है ये आपके माइंड को सुन करती है, इसलिए डायबिटीज वाले वो ज्यादा हो जाए नींद आती है तो उन्हें बड़ा केयरफुल रहना चाहिए ताकि वो डायबिटिक कोमा में ना चले जाएं। ये अक्सर कोमा में चले जाते हैं। और बुजुर्गों में नींद उनको ज्यादा आती है, ज्यादातर जो थोड़ा सा बेफिक्रे रहे। और एक चीज और मैंने देखी है, बिल्कुल मैं साइंटिफिकली डाटा के हिसाब से बात करूंगा, कि जो लोग म्यूजिक के शौकीन हैं, जो लोगों का म्यूजिक में रुझान रहता है, उनको नींद जब चाहे वो सो लेते हैं। उनका रिदम ही ऐसा होता है कि रिदमिकली जो है नींद का होगा ना, एक रिदम, नींद का भी रिदम है, पैटर्न होता है ना। जैसे कई लोग हैं रात को 10 बजे नींद आई, वो कोई बैठ नहीं सकते, दे विल गो टू स्लीप, या बैठे बैठे सो जाएंगे। सो अब आपको नींद जिनको नहीं आती, हम उन पे, जो नींद जिनको आती है वो तो बड़े खुश नसीब हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बात करनी पड़ेगी जिनको नींद नहीं आती, ना आने के क्या क्या सौब बनते हैं। सबसे ज्यादा जो है, जो लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, जो दूसरों के बारे में बहुत सोचते रहते हैं, उन्हें नींद जब वो लेटने लगते हैं तो नींद नहीं आती। इसलिए मैं हमेशा जिनको वो पेशेंट आते हैं उनको कहता हूं कि आपका जो बेडरूम है ये आपके सोने के लिए बनाया है, सोचने के लिए नहीं बनाया। जिस तरह से डाइनिंग टेबल पे बैठ के आप खाना खाते हो, वहां पे और कुछ नहीं करते हो, स्कूल में जाके पढ़ाई करते हो, वॉशरूम में जाके आप अपना वॉशरूम करते हो, नहाते धोते हो, वहां पे आप खाना नहीं बनाते, वहां पे आप सोचते भी नहीं ज्यादा, क्योंकि आपके पास सोचने का, हाँ जिनके पास वो जहां बैठ के ज्यादा सोचने लग पड़ते हैं वॉशरूम में जाके, उन्हें कई तरह की और बीमारियां भी हो जाती हैं। आप बैठे रहोगे तो मोस्टली यू विल एंड अप टू स्मॉल, आप हेमोराइड से लेकर आपको फिशर तक हो सकता है, क्योंकि आप वहां बैठे हो। हेमोराइड इसलिए कि बाय ग्रेविटी जो है
आपके ब्लड में के अंदर क्योंकि आयरन है, तो उस वजह से जो है आपका जो ब्लड के है वो नीचे को आएगा। तो आपको, और जनरली यानी कि जो अंदर ज़्यादा जाके बैठते हैं, हमारे जो मेडिकल बुक्स में हमारे टीचर भी कहते थे कि आप किसी के घर में जाते हो तो अगर उनके वॉशरूम में आपको मैगजीन या अखबार पढ़ती है या कोई अखबार लेके जाता है तो समझो इसको कॉन्स्टिपेशन है, और आधे लोगों को घर में जरूर जो है वो हेमराइड होंगे, यानी कि पाइल्स होंगे, क्योंकि बैठे रहने से तकलीफ ही हो जाती है। सो ऐसी ऐसी जो बीमारी है, फिर जिनको नींद नहीं आती तो उनका जो है लिवर के ऊपर बड़ा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आपने नींद प्रॉपर नहीं ली तो आपका जो है लिवर जो है वो भी खराब होगा। लिवर खराब होगा तो आपकी भूख खराब हो जाएगी। और यही है यानी कि मैदा, जो आपका मैदा है, ये बीमारियों के कह रहे हो कि भाई यहाँ से ये जड़ है। आपका पेट ठीक है तो सब कुछ ठीक हो रहेगा। जैसे ही पेट खराब होगा आपकी, अच्छा फिर कई लोगों को नींद, जैसे पेट खराब होगा तो उससे भी एसिडिटी होती है, रात को नींद नहीं आती, रिफ्लेक्सेस आते हैं, आपको खट्टा पानी मुंह में आता है। सो ये कई तरह की वो जो है ना, फिर उसके साथ बीमारी जोड़नी शुरू कर देते हैं। हालांकि नींद तो आपको आ रही है, लेकिन उससे आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है। आपको रिफ्लेक्स जो है सिस्टम आपका वो सोने नहीं देता, ऊपर तक चढ़ता है। और फिर उसके बाद में जिनको खासकर अगर हम ओल्ड एज की बात करें, जिनके प्रोस्टेट की इनलार्जमेंट हो, उनको भी बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है। और कई तो लकी होते हैं, जैसे पेशाब करके आ गया फिर सो गए। कई नहीं लकी होते जो फिर सोचने लग पड़ते हैं, उनको नहीं नींद आएगी। तो इसलिए कभी भी आपको जब नींद ना आने की तकलीफ है, और अगर बेड पे जाके आपको आधे घंटे के अंदर 20 मिनट के अंदर नींद नहीं आती, तो आप अपने बेड में से निकल जाओ और जाके चाहे टीवी देखने लगो या पढ़ने लग पड़ो, कुछ करने लगो। लेकिन जैसे है कि आपको अपने सोने से पहले एटलीस्ट आधा घंटा टीवी या जो आपका ये आजकल ये फोन है, स्मार्टफोन, इस पे व्हाट्सएप देखना बंद कर दो, अपने मैसेज देखने बंद कर दो आधा घंटा पहले, तब आपको नींद आएगी। क्योंकि ये इसकी जो ब्लू रेज हैं वो भी आपके दिमाग, आंखों से जब दिमाग में जाती है तो उसकी एक्टिवेट रखती है, क्योंकि इन्होंने इरिटेशन देनी है। दिमाग ना नींद आने का कारण क्या कि इरिटेशन चल रही है, आपका दिमाग सो नहीं रहा, उसे आपने सुन नहीं होने दे रहे हो। जब कुछ नहीं सोचोगे तभी नींद आएगी। या फिर नींद आती है तो कई लोगों को सपने बड़े आते हैं, उस सपने से भी जो है प्रॉपरली सुबह उठते यार मेरे तो रात सब सपने ही आते रहे, वो मैं थका थका उठ रहा हूँ। सो अभी और कोई क्वेश्चन है किसी का? ये देखिए क्या जी। मजे से सो रही है, यहाँ सोई हुई है मेरी अनारकली। अनारकली में ये गाना था, या था एबादे सबा आहिस्ता चल। यस। नॉर्मल स्लीप, ये जो स्लीप। ये हमने बात कर ली, सुनील जी आगे बढ़िए प्लीज। So sleep plays an important role in the mental health. Sleep plays brain keep our nervous system is active. Emotions को कंप्लीट रखती है। ये है आपका वेट कंट्रोल में भी है, स्लीप इंक्रीज इम्यूनिटी सिस्टम, ये भी हमने बात कर लीजिए। आगे चलिए जी। हाँ, ये कितना हमें सोना चाहिए, ये वो है 7 से 8 घंटे की जो है 60 साल के लोगों को नींद ले लेनी चाहिए अगर कम आती है। पहले कहा करते थे कि बड़ों को जो है वो नींद 6 से 4 घंटे की बहुत है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट स्टडी हुई है उसमें ये कह रहे हैं कि नहीं, 6 नहीं 7 से 8 घंटे की जो नींद है वो आनी चाहिए। अच्छा आगे चलिए। नॉर्मल स्लीप ये पढ़ रही है, हमने बात कर ली। चलिए आगे। और व्हेन स्लीप गोज एबनॉर्मल, इसके ऊपर भी हमने ये बात करी कि हाँ जी। और चलिए आगे। या अब ये है इंसोमेनिया डिसऑर्डर, ये कैसे बनता है या स्लीप में। अच्छा
एक तो ये होता है कि रात को कुछ लोगों को नींद अगर नहीं आती, तो अगर वो दिन में सो लेते हैं या दिन में झपकी मारते रहते हैं, तो भी उनकी जो स्लीप डिस्टर्ब होगी, रात को नींद नहीं आएगी। और कई लोगों को देखा है कि जनरली जो नींद शाम को 4-5 बजे आई, चलो थोड़ी सी नैप ले लेते हैं, 1-1.5 घंटा नैप ले ली, तो उसके बाद में फिर रात को नींद नहीं आ पाती। और जैसे हमने पहले कहा कि भाई एक नींद में जो है कई लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे कि स्लीप एपनिया भी बोलते हैं, और इसलिए वो यहाँ पे जो मशीन वगैरह लगाते हैं। लेकिन चीज़ एक और भी है, आपको जो स्लीप एपनिया है ये सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से नहीं होता, एक चीज़ और भी होती है कि ये जो जब आप ओल्ड एज में और सीधे अगर आप सो रहे हैं कमर के ऊपर, तो आपके गले के अंदर एक छोटे मसल्स होते हैं, एपिग्लोटिस मसल, वो आपके ढीले पड़ने से वो जो आपकी श्वास नली है उसे रोकते हैं, जिससे कि आपने देखा होगा खुराटे आते हैं। खुराटे आने का सबसे बड़ा कारण एक ये होता है। दूसरा, अगर नेजल सेप्टम में भी कुछ गड़बड़ है तो जो एयर वेज को रोकता है, तो इस वजह से ये आपको आती है। अगर जिनको ज़्यादा है ऐसी तकलीफ, तो अगर वो साइड लेके सोएंगे, दाहिने या बाएं तरफ सोएंगे, तो उनको जो है ये खुराटे भी कम हो जाएंगे या नहीं भी आएंगे, ठीक भी हो जाते हैं। साइड मेरा एक क्वेश्चन है इसके ऊपर। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम बचपन में सोते थे तो मम्मी डैडी से बोलते थे भाई बच्चा बड़ा थका हुआ है, खराटे मार के सो रहा है। हाँ, वो क्या सही होता था उस टाइम कि जब हम खराटे मारते थे बड़े कहते थे कि भाई थका हुआ बंदा इसलिए सो रहा है ऐसे थका कर? हाँ, वो एक्चुअली क्या कि वो डीप स्लीप में सो रहा है और जो है बॉडी के जो मसल्स हैं पूरी तरह से रिलैक्स हुए हुए हैं। उसका जो गले का भी मसला है वो रिलैक्स है। लेकिन बचपन में क्या होता है कि बच्चों में एक एनर्जी रहती है जिससे कि उन्हें वो स्लीप एपनिया होता है, वो उठते नहीं एकदम से तबक के। लेकिन जब ओल्ड एज में है तो हमारी वो नींद डिस्टर्ब होती है और हम तबक के उठते हैं। इतना ही फर्क है। मतलब अगर यंग है तो कोई बात नहीं, बंदा अगर सो रहा है मतलब कि हाँ भी वो थका होगा, मतलब अगर थोड़ा ओल्ड एज हो गया थोड़ा सा तो वो मतलब कि अगर थके हुए इसका कोई मतलब नहीं है उसमें, राइट? नहीं, मसला कोई नहीं है इसमें। अच्छा, आपकी बॉडी इसी हिसाब से आपको क्या कहते हैं अलर्ट करती है। तो मेरा क्वेश्चन है सर जी, कि कराटे मारना प्रॉब्लम है या नहीं है? खुराटे मारना प्रॉब्लम अपने लिए नहीं है, दूसरे के लिए। नहीं, मैं इसमें हेल्थ वाइज भी पूछ रही हूँ। जैसे कि वो नेजल तो ब्लॉक होता ही है ना, तभी जी, खराटे जी। ज्यादा आते हैं, है ना? हाँ, नेजल ब्लॉक होता है और ये जो गले के यहाँ पे जो मसल्स हैं ये जो जी ढीले पड़ जाते हैं तो उसी वजह से होता है ये। जी लेकिन जैसे कहा ना कि जो छोटे बच्चे हैं या यंगस्टर हैं, खासकर जो छोटे बच्चे हैं, उनमें भी कभी नाक जो है पूरी तरह से क्लीन नहीं है, उसमें अंदर फ्लैम रह गया है, या जी बच्चे जो खासकर जिनके जो फैटी हैं, जो ओबीज लोग, उनको भी खराटे की आदत हो जाती है, क्योंकि प्रॉपरली जो है वो देखिए दो तरह से, एक तो ये है कि जो मसल ढीला हुआ है उसकी वजह से, दूसरा ये है कि जब आपका डायफ्राम पूरी तरह से काम नहीं कर रहा, जोर से आपको अंदर ऑक्सीजन खींचनी पड़ रही है सोते हुए, यही मैं पूछ रही हूँ जी। तो वो जो है उससे भी जो है, और ये जो है मसला ये आपके योगा से और होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक हो जाता है। यानी कि जो अगर आप लोम या जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो दैट विल इंक्रीज द functionality of your diaphragm and then you can get rid of kurata. One thing I have question. Sleep talking वो भी जैसे सोए से बोलते हैं, वो क्यों होता है ऐसे? जी जी, हाँ, वो भी है, सोते बोलते भी हैं और सोते हुए चलते भी हैं। हाँ, सुना है, वैसे देखा नहीं चलते सोते से। हाँ, ये भी बीमारी है, खासकर जो है जिनको रात को सोते समय बोलने की आदत है, बड़बड़ाते हैं, वो दिन भर बहुत ज्यादा एक्टिव, खासकर अब देखोगे कि एक तो बच्चों में ज्यादा होती है ये चीज। ये तो मैं भी बहुत बोल लेती हूँ रात को। हाँ, छोटे बच्चे जो है वो, और कई बार होता है कि आपने दिल में बहुत कुछ बोलना चाह रहे थे, नहीं बोल पाए, वो आप जब सोते हैं तो आपकी जो बॉडी है, आपका जो माइंड है, जो आपका सिस्टम है, वो आपसे बुलवाता है कि क्या ले अब जो दिल की बात कहनी है।
नहीं, वो तो जो जैसे सपना आता है ना उसी में बोलते हैं, आप वैसे ही सपने में भी बोला। बोलते हैं, यस, क्योंकि आप एक्टिवली उस चीज के ऊपर आपका ध्यान चला जाता है। बहुत से देखिए आप सपने भी आते हैं, इसके भी कई कारण हैं। जो सपने का है, एक तो जैसे ये भी है जो मेडिकल साइंस में कहते हैं कि आपको जो सपने आते हैं वो इसलिए आते हैं कि आपका जो माइंड है वो इस दुनिया से छूट जाए, डिस्ट्रैक्ट हो जाए, तो आप डिस्टर्ब ना हो। आप सो रहे हैं, आपको कुछ और चल रहा है आपके अंदर फिल्म, तो आपको डिस्टर्ब ना हो। इसलिए बहुत से लोग जो हैं जिनको प्रॉपर्ली ऐसे नींद नहीं आती, अकेले सोते हैं, तो उनको ये भी एडवाइस किया जाता है कि आप अपने साथ कोई ऐसा सूदिंग टाइप ऑफ म्यूजिक लगा लो जिसकी एक ही रिदम चल रही हो। और सबसे आसान जो है वो है आप अपने रूम में फैन चला लो, फैन की एक ही रिदम रहेगी। अगर जैसे स्नो पुराने टाइम में है, मुझे याद आज भी, तो कहीं नहीं सो रहे, तो जब सुबह सुबह मेरी नानी चक्की चलाती थी, उठने का वक्त होता कहीं हम सोचते, तो फिर वो चक्की जब तक चलती रहती थी इतनी नींद बढ़िया आती थी, और जैसे वो चक्की बंद होती थी तो नींद खुल जाती थी। सो नींद के लिए एक रिदम चाहिए, जो दिमाग में जो है सीधी जो उसकी वाइब्रेशन है एक रिदम में जाएगी, तो आपको जो है वो नींद आएगी। वो क्लोरी बन गुरुदत्त जाती जी, है। ये गुरुदत्त जी राखी जी लिख रहे हैं जी कि उनका बच्चा रात को उनके रूम में आ जाता है, चल के आ जाती है उनकी बेटी, और उसके बाद वापस चली जाती है और सो जाती है। वो 10 साल की है, बट जब मॉर्निंग में व्हेन शी वेक्स अप शी डजंट रिमेम्बर कि वो आई थी। या ये इसके स्लीप वॉकिंग है। जी, सो दिस इज इट इज स्लीप वॉकिंग। या इट्स ए डिजीज, इट शुड बी करेक्टेड, ओके। क्योंकि ऐसे में कोई भी कभी एक्सीडेंट भी हो जाता है, आपको नहीं पता चलता। और कई बार ऐसे भी स्टोरीज हैं, स्टोरीज नहीं मतलब जो पेशेंट है रियल में, वो अपना बिस्तर भी उठा के चल देते हैं, बाहर जाके अपनी चारपाई लगा ली और फिर वहां पे ऊपर सो गए, मैं कहाँ पे हूँ, मैं तो यहाँ नहीं सोया था, उन्हें वो पता ही नहीं होता। यहाँ तक के भी केसेस हैं मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में कि सोते सोते किसी का कत्ल भी कर आते हैं, तो उन्हें ये भी नहीं पता होता। सो उन लोगों को ऐसे बेनिफिट मिल जाता है कत्ल अगर किया है, तो ये भी देखते हैं। लेकिन ये है जो स्लीप वॉकिंग है और स्लीप टॉकिंग जो है, इट कैन बी करेक्टेड विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन। एंड पर्टिकुलरली जैसा मैं जानता हूँ हमारे होम्योपैथी में 8-10 मेडिसिन हैं जो कि ये स्लीप एपनिया को भी ठीक करती हैं, आपकी स्लीप टॉकिंग को भी ठीक करती हैं, स्लीप वॉकिंग को भी ठीक करती हैं। इसका इलाज है वैसे, जैसे बच्चों को है रात को उठ के आ गए, जी इसका इलाज है। इसका इलाज है, ठीक है। हाँ। अच्छा, और कई लोगों को ये देखिए आपको बताया जो स्लीप डिसऑर्डर की ये सारे ये स्लीप डिसऑर्डर में आती हैं। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। हाँ, टांगे हिलाते रहते हैं। हाँ, मैं हूँ ये सर। तो भी नींद नहीं आती, नींद नहीं आ रही है तो बहुत सी। अच्छा, इसमें 2 तरह की चीजें, ये जो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में जो है, एक तो यह है कि जैसे आप बिस्तर पे पड़े, आपकी जो है टांगों में या खासकर पैरों के तलियों में सोल जो है उसमें बर्निंग सेंसेशन हो जाती है, बर्न करता है, तो आप अपने रजाई से या कपड़े बाहर पैर में निकालते हो, हवा लगे अच्छा लगता है, फिर आप उसको हिलाते हो। एक चीज और बताऊं, जो अगर लेट सोने गया आपको नींद आ रही है और तब आप जाग रहे हो, तो आप फील करोगे कि आपकी टांगों में रेस्टलेसनेस पैदा हो जाती है। यस। तो अगर आप सो गए तो वो ठीक हो जाती है। सो इसलिए एक ये भी कहीं कोई इंडिकेशन होती है कि अभी आपको सो जाना चाहिए। कई बार टांगों में ये क्रैम्प्स बहुत आते हैं सोए सोए। हाँ जी, क्रैम्प्स भी आते हैं। अब जब क्रैम्प्स आते हैं इसका मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी है, डेफिशिएंसी। तो इसलिए पुराने जो बुजुर्ग हैं वो जनरली क्या करते थे अपने पंजाब में, रात को सोने से पहले दूध पी के, गर्म दूध पी के सोते थे, क्योंकि उसमें से कैल्शियम चला जाए। क्योंकि सारा दिन इतना आपने मेहनत किया है, खेत में काम किया, तो टांगे भी आपकी दर्द कर रही हैं, दुख रही हैं, तो इसी वजह से फिर वो क्रैम्प्स आते हैं। जिनको क्रैम्प्स रात को आते हैं तो वो सिंपली दूध ट्राई करें, रात को गर्म पिए। अगर नहीं फर्क पड़ता है तो हाँ, होम्योपैथिक मेडिसिन या कैल्शियम वगैरह की जो भी है टैबलेट लें,
कैल्शियम की कोई दवाई लें, या इवन जो है कॉपर की कमी से भी टांगों में क्रैम्प्स आते हैं। आजकल तो दूध मना करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स मना करते हैं सर। वो तो चाहते हैं कि लोग बीमार रहें। मैं तो एक सीधी सी चीज कहता हूँ कि हर इंसान की, मैमल की, जितने भी हैं, इनकी पहली खुराक दूध है, तो दूध कैसे खराब करेगा? बिल्कुल, वो उन्होंने आपको कहना कि दूध ना पियो, ये जो बड़ी महंगी ऑर्गेनिक चीजें हैं वो पियो, उनका Yeah. बिजनेस है ना ये, दिस इज ऑल बिजनेस। यस। सही है। ताकि उनके फिर वो कैल्शियम डेफिशिएंसी की गोलियां कैसे बिकेंगी? सही और है सर सर। जो पैरों के नीचे बर्निंग्स होती हैं उनके लिए क्या ट्रीटमेंट है उसका? देखिए, उसका ट्रीटमेंट का सबसे पहली चीज है कि आपको, जिनके खासकर बर्निंग होती है, एक इफ आप डायबिटीज हैं या प्री डायबिटिक हैं या आपकी किडनी में कोई वीकनेस है, दैट कैन बी आल्सो। सेकेंडली, अगर आपका जो फुट है, जैसे बोलते हैं ना फ्लैट फुट, हाँ जी, फ्लैट फुट फ्लैट है है। और आप ज्यादातर चप्पल पहन के रखते हो, फ्लैट चप्पल, तो उससे भी आपका ये हो जाता है। उसकी वजह से भी आपकी जो स्किन है उसमें इरिटेशन आती है। ओके। दैट आल्सो कॉज सच टाइप ऑफ। सेकेंडली जो है, ये कैल्शियम की जो कमी है, ये भी आपको उसमें करेगी। नहीं नींद आ रही है आपको, टांगों में जो चल रहा है, तो आप दूध पी के अगर सोएंगे तो आपको डेफिनेटली, मतलब 80% लोगों को रात को गर्म मुझे भी डॉक्टर ने मना किया था एक बार ना, मैंने अपने सारे टेस्ट करवाए थे, तो उन्होंने कहा था आप दूध लेना बंद कर दो, दूध नहीं पीना। नहीं, कोई और भी वजह हो सकती है उसके, लेकिन जनरली जो मैं आपको बताऊं कि हर एक के लिए हर चीज नहीं होती। हाँ जो फंडामेंट, हाँ, थोड़ा सा ले सकते हैं, जैसे आधा कप ले लो, पूरा कप ले हाँ, लो। या डॉक्टर साहब जी। दूध का ही 2%, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फैट, उसका कंपैरिजन कुछ बताइए। ठीक है, चीज ये है कि ये जो 2-3% निकालते हैं, करते हैं क्योंकि घी बनाना, देयर आर लॉट ऑफ, आई विल से कि इसके पीछे इंडस्ट्री है जो ये सारा कुछ कर रही है। क्योंकि जो पहले तो आप उस दूध को जो फुल फैट है उसमें से फैट निकालते हो, फिर उसमें से आप डाल रहे हो, वो पता नहीं वो फैट उसी का डाल रहे हो या कहीं और जो आपने बचा रखे थे वो, दैट मिक्सिंग इज नॉट गुड। मेरे ख्याल से आपको गुरुजी, मेरे ख्याल से तकलीफ दूध है वो तो या तो फिर आप जिसे सेपरेटा बोलते हैं ना, बिल्कुल फैट फ्री वाला दूध पियो, या फिर जो है वो पूरे वाला पियो। गुरुजी, मेरे हिसाब से जोन सा टेस्ट अच्छा लगे वो पियो। हाँ जी, जोन सा टेस्ट अच्छा लगे, अगर 1% अच्छा लग रहा है स्वाद में तो वो पी लो, हाँ, 3% लग रहा है तो वो पी टेस्ट लो। में तो जो सा है ही है। स्वाद टेस्ट के ऊपर है, जो सा टेस्ट अच्छा लग रहा है वो पी लो। या बात तो सुनील जी फैट वाला ही लगता है। एग्जैक्टली। दूध एक गिलास फैट ज्यादा लाइन बन वाला। रहा है। जहाँ तक स्वाद का सवाल है। नहीं, मेरी बात सुनो, जो घर में जो तली हुई चीजों की बजाय एक गिलास दूध का फैट वाला वो फिर भी अच्छा है। या ये तो है। डॉक्टर साहब जब पहले अच्छा फैट उसमें होता है वो बैलेंस होता है, एटलीस्ट कैल्शियम या दूसरे मिनरल, अगर उससे कुछ निकाल लिया जो अनबैलेंस हो जाता है। या अनबैलेंस हो गया, और वही तो फिर कहा ना, पॉस्चराइज किया आपने एकदम से उसको, जो हाँ पॉस्चराइजेशन प्रोसेस है, एकदम से उसको गर्म करके वो फैट निकाल के एकदम ठंडा करके फिर आप उसको वो करते हो। और फिर यहाँ पे आप देखो कि उसमें प्रिजर्वेटिव डाला होता है। अगर यहाँ पे कि दूध जो मना कर रहे हैं आजकल वो इसीलिए कि दूध की खराब होने की जो डेट उस पर लिखी हुई है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो डालते हैं ताकि वो बिल्कुल। आपको कई तरह से फिर वो तंग करते हैं, क्योंकि उसमें हार्मोन्स वगैरह डाले हार्मोन्स हैं। भी तो इंजेक्ट करते हैं ना सर, बफलो काउस में हाँ, या इंडक्शन के लिए। लेकिन yes। अगर ये आपने अपने घर में गाय या बकरी रखी है तो उसका दूध आप पियो आराम से। मेरे यहाँ जनरली कैलेंडर में फैमिलीज 5-6 पेशेंट हैं जिन्होंने अपने घर में अब बकरियां रख ली हुई हैं। और जी जनरली फैमिलीज हम तो बता ये दें। हैं, बस कहते हैं बस कम से कम 2% या दूसरा ही पियो, ऐसे या रिकमेंड कर रही हैं, तो मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता। एंड बॉयलिंग, आप बॉयलिंग के बारे में बताइए, क्योंकि पंजाब में तो देखो वो दुध बढ़िया सी जेड़ा काढ़ने वाला दुध सी ਅਸੀਂ अच्छी तरह गर्म ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਊਮੈਟਿਕ टाइप नहीं सी ਹੁੰਦਾ। देखो जी, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ असली जो ਘੱਟ दूध बॉयल है करो। वो डायरेक्टली जो है ना, डोके या धारा ਜਿਹੜੀਆਂ
वो सबसे बेस्ट है। बॉयल तो हाँ जी, इसलिए हाँ किया जी, जाता है या जी। ताकि वो दूध खराब ना हो, इसीलिए उसे हर 4-5 घंटे के बाद में दूध को बॉयल करना पड़ता है। आप एक चीज और भी है हाँ ना, जी, अगर किसी को डॉक्टर कहते हैं कि 2% पियो, उसका मतलब ये होता है कि उस बंदे को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, कि उसको ज्यादा फैट नहीं लेना, तो शायद इसलिए वो बोलते होंगे अभी 2% ले लो। नहीं, देखिए इसके पीछे कई तरह की हैं। जो अगर आप सारा दिन कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहे हो, व्हाइट कॉलर जॉब है आपकी, और उसके लिए डाइट थोड़ी अलग होनी ही चाहिए। उन्हें जो है कि आप कम ये फैट वाली चीजें खाओ, क्योंकि आपकी बॉडी में फैट आप बर्न नहीं कर रहे हो। जब बर्न नहीं करोगे तो वो अंदर जमेगा ही, और उसको जहाँ पे जमने की है वो आपका इवन जो है, आपने सुना होगा कि जो फैटी लिवर हो गया आपका, और अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी तंग करता है, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम को तंग करता है, आपको आपके हार्ट को या पल्मोनरी जो है वो उसमें भी आके जमता है। तो या डॉक्टर साहब जी, ये जब कारण नहीं कोलेस्ट्रॉल है। की बात चली, कोलेस्ट्रॉल की बात चली, तो कोलेस्ट्रॉल भी कई किस्म के हैं। बिल्कुल, मतलब कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी का सबसे हम्म जरूरी एक पदार्थ है। हमारा जो माइंड है ये टोटली कोलेस्ट्रॉल में ही है, और आपका लिवर ही कोलेस्ट्रॉल बनाता है। वो ज्यादा बनाता है, आपकी बॉडी जो है उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत आज की डेट में ये है कि वी आर नॉट डूइंग एनी एक्सरसाइज, या ये कह लो कि फिजिकल वर्क नहीं है हमारा। अगर हम फिजिकल शुरू कर दें एटलीस्ट 1 से 1.5-2 घंटे, जिसको है कि भाई विगरसली एक्सरसाइज करें या कोई काम करें, तो उससे कुछ नहीं होगा। तो आजकल तो हम कुछ काम करते ही नहीं है। हर चीज के लिए तो मशीन है, कपड़े धोने के लिए मशीन है, बिल्कुल बिल्कुल, ये भी है। कहीं जाना है तो मशीन पे जा रहे हैं। और फिर वहां पर भी हमारी, हमेशा ये बात करता हूँ कि पहली कोशिश ये होती है कि स्टोर के नजदीक आपको पार्किंग मिले, वहां भी आप चलना नहीं चाहते। और एक्टिविटी और भी आजकल तो अभी और इतनी बिल्कुल ही होनी नहीं, चाहिए आप कि शॉपिंग के लिए जाना ही एटलीस्ट नहीं चाहते। आप जो है ऑनलाइन सामान घर पे ही मंगा रहे हो, आप घर से बाहर ही नहीं निकल रहे, आप ताजी हवा ही नहीं खा रहे हो। खासकर कनाडा में तो आपको 1-1.5-2 घंटा तो हवा लेनी चाहिए बाहर बैठ के। सर और फूड का क्या रिलेशन है डॉक्टर स्लीपिंग साहब, डिसऑर्डर में? और एक्टिविटी भी इतनी फूड होनी एंड चाहिए स्लीपिंग डिसऑर्डर। कि स्वेटिंग होनी चाहिए, स्वेटिंग स्वेटिंग तो अंकल जी तब होगी ना जब एक्टिविटी में। आप चलोगे, पैदल पैदल चलोगे, अपने जिस्म को हिलाओगे, शोल्डर हिलाओगे, हाथ हिलाओगे चलते चलते। अगर आप पैदल मैं सैर अभी करके मोहल्ले का चक्कर लगा के आ गए, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपने बॉडी तो हिलाई नहीं, सिर्फ टांगे हिलाकर आ हम्म गए आप, राइट। हाँ, मतलब उतनी चाहिए। अब आप देखो ना, कई चाइनीज लोग होते हैं, कई लोग होते हैं सड़क पे चल रहे होते हैं, हाथ ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमा रहे होते हैं सारे, चलते चलते। वो इसलिए चला रहे थे कि चेस्ट वगैरह जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह है वो सारा उनका ठीक हो। या हैविंग चाइनीज। अच्छा, मीता जी कुछ पूछ रही थी खाने का और उसका सोने का कुछ हाँ, पूछ रहे मैं थे। सर फूड और स्लीपिंग डिसऑर्डर का पूछ रही थी सर। हाँ, देखिए फूड का भी बहुत ही अहम रोल है इसमें। जो स्टिमुलेंट टाइप ऑफ फूड है रात को वो कम खाने चाहिए, जी। या बेवरेज है। जैसे मैं अपनी तो बात अलग से नहीं करूंगा, क्योंकि जैसे बहुत से लोगों को चाय कॉफी से नींद नहीं आती, तो उनको फिर रात को ऐसे जो स्टिमुलेंट हैं वो नहीं लेने चाहिए। अच्छा, बहुत से लोगों को एक कह लो वहम होता है, या यार थोड़े देर दारू पी के ना नींद बढ़िया आ जाती है। वो नींद बढ़िया नहीं आती, आप ड्राउजी हो जाते हो, या ये कह लो कि वो आप ज्यादा दारू जब पीते हो तो आप एक कहते हैं कि बेहोशी में आ जाते हो, और आपकी जो नींद है वो जल्दी उखड़ेगी, या बीच में उखड़ेगी तो फिर आपको नींद नहीं आएगी। हाँ, जनरली जैसे है कि मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ कि भाई जिसको बोलते हैं कि रिकमेंडेशन। जनरली जैसे आप घूमते फिरते नहीं है, कुछ नहीं करते, या आपके बहुत ज्यादा जो मेंटल वर्क है, अल्कोहल इज नॉट बैड, लेकिन अल्कोहल की भी एक मात्रा होती है कि जो कि आपको ठीक बैठ सकती है। और वो जो है वो 30 to 60 ml एवरी डे की है, वो उन लोगों के लिए पर्टिकुलरली जो बैठ के काम करते हैं। वो इसलिए
कि हम जो भी कुछ भी खाते हैं, जो हमारा फूड है, जब ये डाइजेस्ट होता है तो अल्टीमेटली इट टर्न इनटू अल्कोहल। वो कहते हैं कि अंधा नशा, इसलिए खाना खाने के बाद में आपको थोड़ी सी ड्राउजीनेस आती है 1-1.5-2 घंटे के बाद में, तो वो इसलिए होती है कि आपके अंदर अभी अल्कोहल बन गई है। लेकिन जो लोग हैवी वर्क करते हैं वो उनकी अल्कोहल बनती है और वो जो है वो जल जाती है। अल्कोहल का काम क्या, आपकी बॉडी को के अंदर ऊर्जा पैदा करना, हीट पैदा करना, वो जलती है तो जिससे कि भाई आपकी बॉडी जो है वो सही तरह से भाग दौड़ करती है। अगर अल्कोहल आपके बॉडी के अंदर नहीं है तो ये दैट इज ए फ्यूल। देखिए खाने को आप ये समझिए कि ये मेरा फ्यूल है, जैसे आपने गाड़ी में फ्यूल डाला, कोई भी जो भी चीज चलने वाली है वो अल्कोहल के बिना, कर रहे हैं फ्यूल के बिना नहीं चल सकती, उसके लिए हीट चाहिए। और इंसान जो है या जो भी प्राणी है, वह नेचर ने एक उन्हें अपने आप ऑटोमेटिक रनिंग मशीन बनाया। हमने बाकी जो है फिर मशीनरी अलग तैयार की जो ऑटो है। हम खुद ही ऑटो हैं, क्योंकि आप देखो कि छोटे छोटे जो बच्चा पहले चलता नहीं है, धीरे धीरे चलना शुरू करता है तो उसकी मूवमेंट उसमें उसी तरह से बढ़ती है। अच्छा, जी। दूसरा जो है, अभी हम इसी पे वापस आते हैं, ये तो बहुत लंबे एक से एक दूसरी बात निकलती है मेडिकल की, खासकर जो है इसको कहता हूं मैं कि ये प्याज के छिलके हैं, एक छिलके को निकालोगे दूसरा और तैयार आ जाएगा नीचे से। सो ड्रग इंड्यूस्ड बहुत सी ऐसी दवाइयां भी होती हैं जो कि आपको नींद नहीं आने देती, और कुछ ऐसी दवाइयां जो आपको नींद लाती हैं। और खासकर नींद लेने के लिए जो दवाइयां हैं वो कुछ अर्सा तक ही काम करती हैं, उसके बाद भी उनकी ऐसी आदत बॉडी को हो जाती है कि वो नींद को खाने के बाद भी आपको नींद नहीं आएगी। या कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं जिसमें नींद नहीं आती, खासकर जिसको अल्जाइमर की बीमारी है या जो डायमेंशिया के हैं, या फिर किसी को ऐसी चोट लगी है, पेन हो रही है, तो उसमें भी नींद नहीं आएगी। सो जी नेक्स्ट स्लाइड है जी कुछ। सुनिए जी, नेक्स्ट स्लाइड है जी। ये टाइप ऑफ स्लीप, क्वालिटी एंड क्वांटिटी इम्पेयरमेंट, डिफिकल्टी इन इनिशिएटिंग स्लीप। क्योंकि हम शुरू में आपको, जैसे मैंने कहा कि नींद नहीं आ रही है, आप बिस्तर पे लेटे हैं, नींद नहीं आई, तो आप उठ जाइए, नींद को बुलाइए, कुछ ना कुछ आप किताब वगैरह पढ़िए। नींद का जो है अच्छा जो है तरीका एक ये है। या फिर आप कुछ भी, अगर आपको सोचने की आदत है तो अच्छी चीज के बारे में आप सोचना शुरू कर दे, नींद आ जाएगी। आप अपने साथ जो बुरा हुआ है उसे मत सोचिए, या किसी के साथ कोई तकलीफ है उसकी जो अच्छाइयां पे आप जाओगे तो बड़ी जल्दी नींद आएगी। सबसे बड़ी चीज है गुरुजी, वो जो अपना भजन वगैरह चला लो, मंत्र वगैरह चला लो, जाप जी वगैरह कुछ भी, हाँ, सुनते सुनते बंदे को अपने भी प्यारी नींद आ जाती है। या वो भी है, क्योंकि चीज ये हो जाती है कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किसी भी, खासकर ये मेडिटेशन में अगर कोई मंत्र वगैरह या ऐसी, तो वो ये ना हो कि भाई ये हम एक धर्म को कुछ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन मैंने पर्टिकुलरली देखा है कि आप जैसे आपने बोला वो एक रिदम में हम लाते हैं, इसलिए कोई भी रिदम में आप चीज ले आइए। ओम वाहिगुरु करिए तो भी आपको नींद आने लग पड़ेगी, राम राम करिए, है जो है गायत्री मंत्र का जाप करना शुरू कर दो लगातार, तो क्योंकि वो रिदम आई आपकी, आपको रिदम ने सुलाना है। तो बच्चों को लोरियां सुनाते थे गा के, तो म्यूजिक ने तो नींद लेके आनी है। ये चीज ये कैसी है, आपको मगन कर देती है और आपको एक दूसरी दुनिया में ले जाती है। डॉक्टर साहब एक और नींद के लिए एसिडिटी एंड एल्कलाइनिटी का कोई इफेक्ट होंगे जी? जी वो मैंने पहले बात करी, जो आपका रिफ्लेक्स सिस्टम, रिफ्लेक्स जो होती है जिन लोगों को रात को सोते खट्टा पानी में आना, ये सारी जो चीजें, तो उसके लिए जो है ये अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग एंड अनेबल टू फॉल बैक। अगर आप कई बार होता है कि आप जल्दी सो जाते हो तो भी आपकी जो नींद है वो आपका जो पैटर्न बना 6-8 घंटे का, उसके बाद तो फिर आप उठ जाओ, बहुत बढ़िया रहेगा। तो हाँ, अगर वैसे ही आपको बहुत जल्दी 4 बजे आप उठ गए हैं तो उसके बाद में फिर आपको नींद आती है, ये खासकर उन लोगों में है, मैंने देखा जनरली, जो अल्कोहल पी के सोते हैं
वो जल्दी उठ जाते हैं, 1-1.5 घंटा उनकी जो कहते हैं कि अगर आपने 1 पैक पिया है तो आपको बहुत बढ़िया नींद आएगी, 2 पैक पिए हैं तो आपकी जो नींद है वो जल्द सुबह में थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी, तीसरा पैक पिया है तो आपकी नॉर्मल स्लीप से आप 1 घंटा पहले उठ जाओगे, अगर और एक लिया है तो 2 घंटे पहले उठ जाओगे। सो क्योंकि आपकी जो है वो ऐसे इंड्यूस स्लीप थी बिकॉज ऑफ अल्कोहल। लाभ ज्यादा समझ में आ रहे हैं अल्कोहल के, हाँ जी, लाभ ज्यादा समझ में आ रहे हैं अल्कोहल के। लाभ नहीं है, नुकसान फायदा है। बताओ। है ना, इनकरेज कर रहे हैं जी डॉक्टर हाँ, साहब। लाभ ही पता चलते हैं, जो समझ में आ रहे हैं लाभ ही दिख रहे हैं सर, फायदे ही सुनते पहले, आपको मैं नुकसान बता रहा हूँ आपको देखना नींद कम मैंने। आएगी उससे। अवतार जी डॉक्टर साहब गुरुजी लेने आज गुरुजी बउआ प्लान बना रहे हैं वीकेंड का आपके साथ। हाँ, तुसी वैसे ही कहते हो। नहीं, मैंने तो पहले कहा कि मैं इनकरेज नहीं करता हूँ किसी को दारू पीने के लिए। वो तो अब आप क्या हो गई सर। हाँ जी, हाँ ठीक। बे पटियाला पैक नहीं चाहिए था, छोटा चाहिए था। नहीं आप वही कहा ना कि मतलब आप कि मेरी एक जो है प्रॉब्लम है, जी ये मेरी एक क्वेश्चन प्रॉब्लम है कि मैंने जब से अपना गाल ब्लैडर रिमूव करवाया ना, जी जी तो मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया था कि पेंटोसेक DSR, वो जो खाली पेट खाने वाली टैबलेट होती है, जी 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 वो एंटासिड। वो खानी है डेली ना, तो मैं तब से खा रही हूँ। 16 में मैंने करवाया था, तब से खा रही हूँ ना। आंटी जी पहले आप अपना नाम तो बता दें, आपका नाम ही नहीं आ रहा, उस पे गैलेक्सी लिखा आ रहा है। अमरजीत। मेरा नाम अमरजीत। अमरजीत कौर है। ना मैं चेंज कर दूंगी है। हाँ जी, ताकि पता चले ना सबको कौन किससे बात कर रहा है। मैं हाँ कर दूंगी। जी, थैंक यू। तो मैं ये चाहती थी कि कनाडा में कोई उसके पैरेलल कोई टैबलेट है ऐसी जो मैं खा उसकी जगह ले सकूं, क्योंकि मैं यहाँ आई हुई हूँ तो वो खत्म हो गई है मेरे पास ना, तो मुझे खानी पड़ती है, बिना खाए मुझे नींद ही नहीं आती है वो। नहीं वो आप जो भी एलोपैथी मेडिसिन खा रहे हैं तो यहाँ आप डॉक्टर को बताएंगे तो वो आपको उसका जो है पैरेलल मतलब दे बता देंगे देगा। ना। डॉक्टर साहब मैं यूं कह रहा सी कि अभी वो ना इंटरनेट पे देखो व्हाट इज दिस मेडिसिन, किस फूड में जो ज्यादा मिलेगी, वो फूड भी थोड़ा इंक्रीज कर सकते हो। हाँ, उसका ऐसा कोई नहीं और क्योंकि जब अल्टरनेटिव भी गाल हो ब्लैडर सकता है। देखो गाल ब्लैडर निकाल दिया जाता है तो उसमें से जो जूसेस आने होते हैं, जो बाइल वगैरह आनी है, वो हाँ जी, प्रॉपरली आपकी डाइजेस्टिव बॉडी में जूसेस। नहीं आती, तो वो जिस चीज को उसने हजम करना है, खासकर फैटी फूड को, हाँ तो जी, हाँ जी। उसका जो है अल्टरनेट वो टैबलेट है, उन्होंने आपका वो गाल ब्लैडर निकाल दिया, लेकिन गाल ब्लैडर जो फंक्शन कर रहा है, जो आपके अंदर केमिकल आ रहा है उसकी वजह से, तो आपको वो एक गोली है वो, तो अगर आप वो गोली नहीं मिल रही है तो आपको फिर ये है कि टोटली आप फैट फ्री डाइट पे चले जाएं तो फिर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। उसके लिए फिर यही है कि आपको बॉइल्ड आप सब्जियां वब्जियां खाएं, हाँ जी, सब कोई बॉइल्ड, तो आपको जरूरत नहीं वो फिर पड़ेगी। टोटली चेंज करना पड़ता है ना, और फैमिली में या होता है कि मुश्किल जैसे होता है, इसीलिए या वो जो बनती है गोली है सब्जी आपको जो वगैरह, वो खाना थोड़ी बहुत खानी इज पड़ती है। रॉन्ग इन दैट। हाँ जी, हाँ। चलो, अगर आपको थैंक वो यू। यहाँ नहीं मिल रही, पहले आप ट्राई करिए, नहीं मिल रही तो अगर फिर आप बताइएगा, या आप नोट कर लीजिए, एक होम्योपैथी मेडिसिन है नेट्रम सल्फ 3x, नेट्रम सल्फ 3x में आप ले लीजिएगा, उसकी 4 से गोलियां दिन में आपको वो, लेकिन 3 बार खानी पड़ेगी। ये आप कहाँ अवेलेबल होएगी, हाँ जी, कितों मिलेगी सर? वो आपको यहाँ ये जो है इवन शॉपर ड्रग में भी मिल जाएगी, नहीं तो जो भी होम्योपैथिक यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग, उनसे आपको मिल सकती है वो, या फिर आप इंटरनेट पे चले जाइए, आपको जो है अमेजोन हो गया या होम्यो कैन, जो कि कनाडा की कंपनी है, वो होम्योपैथी मेडिसिन बनाती, यू कैन गेट ऑनलाइन नेट्रम सल्फ 3x। सर के लिए किसी व्हाट्सएप भी पे डाल फार्मिस्ट को चले जाओ, खुद हम दे देंगे। डाल दोगे सर? किसी फार्मिस्ट को ड्रग शॉप पे चले जाओ, ओके, they will tell you the equivalent of that. कोई भी प्रैक्टिशनर आपको दे देगा जी, होम्योपैथी प्रैक्टिशनर। राइट, चलो जी। लेना थोड़ी पोटेंसी में है जी, 3x।
हाँ जी, नेक्स्ट क्या स्लाइड है जी अपनी? देखो सुनील जी, राखी सेइंग के डॉक्टर साहब अल्कोहल नु इस करके फेवर कर रहे ने क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन ਵਿੱਚ थोड़ा ज्यादा अल्कोहल ਹੁੰਦਾ है। नहीं मैं फेवर ही नहीं कर रहा, मैं तो सीधा कह रही हूँ, आई एम नॉट फेवरिंग। उससे He has गोलियां मेडिसिन देने said वाली the नहीं होंगी, benefits of that. होम्योपैथिक I'm मेडिसिन आर प्रिजर्व्ड इन अल्कोहल। just little bit तर मजाक ही है बस। हाँ जी सर। एक बार तो मजा आया ਜਾਂਦਾ खा के होम्योपैथिक मेडिसिन। हाँ जी सुनील जी, नेक्स्ट स्लाइड क्या है? हाँ, अब जिनको Total ये हमने बात इस आने से पहले कर दी थी कि जो इनको टोटल इंसोमिनिया है, उसका जो है एक तो ये मूड डिसऑर्डर। देखिए आप कभी भी बिस्तर पे जब जाने लगे हैं तो गुस्से में मत जाओ। अगर आप किसी के से लड़ाई झगड़ा हुआ है तो यू विल नॉट एबल टू स्लीप, वो आपको गुस्सा जो है और आपके अंदर आता रहेगा और आता रहेगा, तो आप तब सोने की कोशिश मत करो। या फिर बहुत खुशी है, आपकी लॉटरी निकल आई है आप तब भी आपको नींद नहीं आएगी, वो मूड डिसऑर्डर हो गया तो भी मत सोइए। लॉटरी आ गई, नींद ना है, कोई बात नहीं। स्कीमा चल पैंदियां। लेकिन मेरे ख्याल में कि जब आप बहुत आपको खुशी है तब आपको, या गुस्सा है तो आपको नींद नहीं आएगी। हाँ, जब आपका मूड डिप्रेस होता है तब आपको जरूर नींद आ जाती है। एक्साइटमेंट होती है ना तो नींद नहीं आती, यस, जैसे कोई एक्साइटमेंट शो में हो नींद नहीं रहा आती, होता है। आपको एक्साइटमेंट से दूर होना है। सो उसके लिए फिर एक्साइटमेंट को दूर होने के लिए, जैसे मीता जी ने अभी आपको मेडिटेशन करवाई, कुछ मेडिटेशन करिए और जो है ठंडा पानी पीजिए जी, ठंडा पानी दो साइड में। हाँ वो तो फिर है ना, चिड़ी बेचारी की करे, ठंडा पानी पी मरे। हाँ, दूसरा यह कि जैसे नींद नहीं आती, जैसे ये बात इस पे है, ये सारी ये चीजें हैं कि अगर किसी भी वजह से आपको और है तो आप रात को स्नान करिए और स्नान करके सो जाइए, आपको बड़ी अच्छी नींद आएगी। The reverse counting, हाँ वो तरीके जैसे वो रिवर्स काउंटिंग भी है, लेकिन वह कि आप फिजिकली अगर करना है तो सोने के बाद भी, क्योंकि अगर आप वो थके भी हुए हैं और थोड़ा सा जब आप नहाने से तो वैसे ही आपकी बॉडी आधे से ज्यादा रिलैक्स हो जाती है। लेकिन मैं यहाँ तक भी आपको कह सकता हूँ कि जिनका ब्लड प्रेशर, आप अपना जो है नहाने से पहले आप चेक करिए और नहाने के बाद आके देखिए कि आपको 5 to 10 नंबर जो है आपके डिजिट में फर्क पड़ जाएगा नहाने के बाद, इतना बॉडी रिलैक्स हो जाती है। मैंने एक चीज और पूछनी थी, जैसे कई बार लोग पानी पीते, जैसे भाई किसी ने फटाफट एक गिलास फटाफट तेज पी लिया, एक गिलास, दूसरा गिलास, बड़ी प्यास लगी थी, वो सही होता है या डॉक्टर कहते हैं भाई सिप बोतल भर के रखो, उसका मतलब ये नहीं कि बोतल एक बार में खत्म कर दो, सिप हर 5 मिनट बाद एक गुड मारते रहो, इससे उससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए जो पानी धीरे धीरे पीना है, सिप करना है, इससे आपकी जो बॉडी में वो जो है एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर रहेगी, तो वो जो एक बॉटल है आपकी टोटल, वो सारा दिन तक चलती रहेगी, एंड दैट इज नॉट सो गुड। आपको जब भी पानी पीना है आप गिलास भर के पानी पीजिए, ताकि आपकी बॉडी को जितना पानी चाहिए उतना वो उसमें से पानी आएगा, आपको थोड़ी देर के बाद जल्दी पेशाब आ जाएगा, जितना बॉडी रखना है। यानी कि जो 69.9% जो है, यानी कि आप 70% हमारे अंदर बॉडी के अंदर पानी, और अगर आप थोड़ा थोड़ा पानी पिएंगे तो आपके अंदर पानी की रिटेंशन शुरू हो जाएगी और आपकी किडनी भी फेल हो सकती है और आपका जो है वजन ये भी बढ़ जाता है वाटर रिटेंशन से, एंड दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू ड्रिंक सिप। गुड। सिप नहीं पीना चाहिए, सिप नहीं पीना चाहिए, प्यास लगे तो अच्छी तरह से पानी पियो। गुड। प्यास बुझती भी नहीं है जब तक हम एक गिलास भर के नहीं पियेंगे। जी ज्यादा प्यास लगी होती है तो पूरा गिलास चाहिए ही होता है। हाँ, हाँ, मैं तो आप इसी तरह पीती हूँ, पूरा ग्लास भरकर। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि नलके के पास जाकर बुक बनाओ और उससे पानी पियो, रज के पानी पियोगे। रज के यहाँ नलके है नहीं कनेडा में। नहीं तो टूटी तो है ना, नलका क्यों नहीं है? गेड़े वाले की गल थोड़ी कर रहे हैं, टूटी देख नहीं, टूटी है, हैंड पंप नहीं है।
ग्लास बहुत बड़े बड़े हैं, वो भरकर पी ले। हाँ नहीं वो भी ठीक है, वैसे बात कर दो जो पानी आप बुक करके पीने से मजा आता है ना। एक सर और खड़े जी होके डॉक्टर पानी नहीं साहब, पीना चाहिए, खड़े लोगों होके पानी नहीं के पीना चाहिए। एक उसका नहीं डॉक्टर पता साहब जी पानी मुझे, के लिए ओबल सब यूनिवर्सिटी में बहुत कुछ आता है डॉक्टर साहब जी। पानी में बहुत सजेशन चल रही है पब्लिक में, गर्म और ठंडा। हाँ हाँ, ये ठंडा कोरोना और के गर्म पानी की जो बात है आपको बताऊं, हमारे अंदर बॉडी का एक टेम्परेचर सिस्टम बहुत नेचर ने सेट किया हुआ है। आप बहुत ज्यादा ठंडा पानी पियोगे तो बॉडी को उस टेम्परेचर पे लाने के लिए अपनी ऊर्जा लगानी पड़ेगी, और अगर ज्यादा गर्म पिया है तो बॉडी ने आपको उस टेम्परेचर पे लाना है, नॉर्मल पे रखना है। तो आप अपनी बॉडी के थर्मोस्टेट को चेंज कर रहे हो बार बार। हाँ, सर्दियों में आप गर्म चीजें पिए और गर्मियों में जो है वो ठंडी। अगर आप बाहर हैं, जैसे अब बहुत धूप में आप घूम रहे हैं तो आप जरूर पियो, और लेकिन आप जब घर में के अंदर हैं तो जनरली आपको रूम टेम्परेचर पे ही पानी या कोई भी जो चीज पीनी चाहिए। कोसा आप पानी बार बार अपने बॉडी के थर्मोस्टेट को चेंज करें। नॉर्मल पानी ठीक रहेगा मेरे ख्याल से, तो नॉर्मल पानी सही है, जो नलके से आया सिंपल सा वही पी लिया। जी जी, तो पानी नहीं दो नॉर्मल से। इसीलिए जो है ना, अगर हम पुरानी बातें करते हैं जब भी, तो पुराने टाइम में ये कई चीजें अभी नहीं थी, जैसे घड़ा था तो घड़े में जो है वो पानी रखा हुआ तो आपको वो एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रहेगा वो। डॉक्टर साहब जो पानी टूटी से सप्लाई हो रहा है, इसके बारे में कुछ बताइए कि प्योरीफायर लोग बेच रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं, हाउ फार इज अवर ये टूटी वाला पानी कैसे है, सजेशन का दीजिए देखिए जो आपकी कुछ। म्यूनिसिपैलिटी है वो आपको ये कह रही है कि हमारा जो पानी है वो पीने लायक है, हाँ जी, तो अगर उस पर विश्वास करें। बाकी जो है सामान बेचने वालों ने अपना सामान बेचना ही है, और आज की डेट में सामान ऐसा जो है हेल्थ के लिए तभी बिकता है जब आपको डराया जाएगा कि आपकी ये बिल्कुल जी। इसका नुकसान होगा। इसमें मैं बता देती हूँ सर, एक ऐड कर देती हूँ। मेरी डॉटर इन लॉ एनवायरमेंटलिस्ट है, वो एनवायरमेंट का ही काम करती है, और शी हैज बीन टेलिंग एवरीवन कैटेगोरिकली कि कनाडा का पानी सेकंड बेस्ट वाटर माना जाता है पूरे वर्ल्ड में, and it is really fit for drinking. There is no need of mineral water until and unless some doctor has specifically you have some problem के उसमें कुछ water salt में कुछ चक्कर है। It is perfectly fit for drinking. मीता जी जो बोतलों का पानी है वो तो वैसे भी आपके लिए अच्छा नहीं है एनीवेज, अच्छा नहीं है, क्योंकि एक तो प्लास्टिक में आता है, दूसरा बात किसी में वो नहीं है तो किसी में फ्लोराइड नहीं, किसी में ये नहीं है। नलके का पानी बेस्ट है, हम तो नलके का पीते हैं घर में, चाहे फिल्टर भी है। वही पीते हैं जी, हम भी वही, और वो पता नहीं कब का पैक्ड है ये भी नहीं पता। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। This is good information we are giving to public. नहीं, वो तो एक चीज ये है कि आपको पोर्टेबल है, आप कैंप पे जा रहे हो तो ठीक है, टेम्परेरी हिसाब से ठीक है, टेम्परेरी वगैरह के लिए ठीक है, वो तो कन्वीनियंस के लिए ना, लेकिन इट शुड नॉट बी योर रूटीन। यस, क्योंकि जो नलके का पानी आ रहा है उसमें सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर व्हाटएवर सपोज्ड टू बी इन द वाटर। या क्योंकि यहाँ तो जो पानी है वो झीलों का है और फर्स्ट क्लास पानी है जी। होपफुली आज आप सबको अच्छी नींद आए। थैंक यू। और अगर नहीं आए या जिनको भी ऐसी कोई तकलीफें हैं नींद ना आने की, सो जो है आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक जो मेडिसिन हैं वो आपकी नींद को नॉर्मलाइज करेंगी, आपकी फंक्शन को नॉर्मलाइज करेंगी, नींद इंड्यूस नहीं करेंगी जैसे कि एलोपैथी मेडिसिन में होता है कि आप गोली खा के सो जाओ, तो वो उसकी आदत पड़ती है। लेकिन होम्योपैथी में जो है या आयुर्वेदिक में जो है या जो मेडिटेशन वगैरह ये आप करते हैं तो इससे जो है आपको हमेशा के लिए तकलीफ आपकी दूर होती है और उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं रहेंगे। गुरुजी कोई और तो नहीं इसमें रह गई स्लाइड? हाँ जी, कोई और तो नहीं रह गया स्लाइड? इसके नेक्स्ट क्या है देखो, डॉक्टर साहब जी अपनी मीटिंग आ
ਇੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ। I think it's good. Is it good? तो YouTube ये वीडियो की भी ट्रीटमेंट की डिमांड बातें हमने होती है। कर ली, स्लीप हाइजीन बहुत जरूरी है। अवतार सिंह जी, ऐसा है कि हमारा ना YouTube में चैनल है मोक्षा कनाडा फाउंडेशन का। आप YouTube में जाके ना उसको सब्सक्राइब करें, ताकि उसमें कुछ भी हम डालेंगे वीडियो तो आपको मैसेज मिल जाएगा। तो आप देखें, अगर आपको देखनी है देखें, नहीं देख एटलीस्ट मैसेज मिल जाएगा आपको, हाँ जी वो कुछ लग गया वहां पे। तो हम ये सारी वीडियो जितनी भी अभी लगेंगी सारी हो रही हमारी, तो हम फेसबुक पे भी डालेंगे और हम उसमें यूट्यूब में भी डालेंगे, ताकि क्योंकि आपको कभी भी फेसबुक में तो ऐसा ना जल्दी इमीडिएट आ जाती है लाइव। अगर चलेगी यूट्यूब में वो तो कोई निकालेगा तो आएगी, नहीं तो ये वो सामने आप नहीं आएगी। उस पे बटन दबाएंगे ना, सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो आपको उसका भी मैसेज ऐसे ही आएगा जैसे फेसबुक का आता है। मैं ये कह रहा हूँ फेसबुक में जाएगी तो लाइव आ रही है, अगर उसमें करने सब्सक्राइब को कोई कहते कर रहा हैं। अच्छा, है कि लाइव नहीं, उसमें जी। वो हिडन होती है, हिडन रहती है। अच्छा, समझ गया। फेसबुक में आ जाएगी तो ठीक है, ओपन में लोगों को मिल अगर आप जाएगी। लोग अपना कैमरा ऑन कर लेंगे सारे, तो हम फेसबुक लाइव में ले आएंगे अगले हफ्ते आपको। आप लोग तो कैमरे में नहीं आते तो लाइव लेकर क्या करेंगे बताओ। नहीं, हाँ, सामने कैमरे में बैठे आइए। हैं, मेरा तो मतलब है लोगों को फायदा रहेगा जी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हम शॉर्टेज ऑफ टाइम हो रहा है, सो ट्रीटमेंट फटाफट बोल दें। जी। वैसे तो काफी कुछ बोल ही दिया है। नींद ना आने का जो कारण है, पहले आप उसके ऊपर ध्यान दें, ताकि आप उस काज को आप दूर करिए तो आपको नींद आ जाएगी। और नींद जो है, इसकी जो है स्लीप हाइजीन, एक तो बहुत बढ़िया सा आप साफ सुथरा बिस्तरा रखिए, जिसमें अंदर जाते ही आपको रूम को आप खूब अच्छी तरह से अपने मन से सजाइए, आपके स्लीपिंग रूम को, और ये सोचिए कि यहाँ पे मैंने सोना है। जिस तरह कि आप अपने डाइनिंग टेबल को साफ करके अच्छी प्लेट रख के खाना खाते हो, बढ़िया से कप में चाय पीना पसंद करते हो, इसी तरह से अपना जो है बेड को आप एंजॉय करने के लिए, अपने उस रूम को एंजॉय करने के लिए, उस रूम में वैसा वातावरण आप तैयार के एनवायरनमेंट करिए, ताकि आपको उससे नींद आ जाए। और एक रेगुलर एक और क्वेश्चन दे दूं? रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट अगर टाइम जो है है तो। नींद की। ताराजीत सिंह जी रुक जाइए जरा, ये खत्म कर लें। अच्छा। दिन में अवॉइड करिए आप नैपिंग लेना, और रात को सोने से पहले स्टिमुलेंट जो चीजें हैं, बेवरेज हैं, वो आप ना लीजिए। और जो खाना है वो अपने सोने से 1.5-2-2.5 घंटे पहले खा लें। इमीडिएटली आप खा के सोएंगे तो आपको नींद में होगी। और दूसरी बात, रात को जो है लेट इवनिंग एक्सरसाइज मत करिए। एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी में एक्टिविटी आ जाती है। आप सो मेक श्योर स्लीप एनवायरनमेंट रिलैक्सिंग, जो मैंने पहले ही आपको बताया। इफ यू डू नॉट स्लीप, आप उठ जाइए अपने बिस्तर से और कुछ ना कुछ और करिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सुरेंद्र जी। सो मेडिकेशन फॉर स्लीप शुड बी द रिजर्व फॉर शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट ओनली। जो भी है वो गोली वगैरह करते, कभी आपको चोट लगी है या कुछ और वजह है, किसी वजह से आपको एंजाइटी बहुत हो रही है और सुबह आपने कहीं जाना है, तो वो आप ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल भी स्लीपिंग पिल आप मत लो, क्योंकि स्लीपिंग पिल आपको नुकसान दे सकती है। आपकी रात को, खासकर जिनको बार बार पेशाब करने की आदत है या तकलीफ है किसी वजह से, उन्हें तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। दे कैन लैंड इन द एक्सीडेंट। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और कोई भी आपको अगर तकलीफ हो, कभी भी हो किसी भी चीज के लिए, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। गुरुजी 2 मिनट, अवतार जी सिंह का अवतार जी क्वेश्चन है। ताराचंद जी बोलिए। डॉक्टर साहब कई बार ना जनरली पब्लिक सोचਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪੈ ਕੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਜੀ ਪੇਟ ਥੱਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜੀ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਾਂ ਹੁਣੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਨਰਲੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫੂਡ ਖਾਦੇ ਤੇ ਘੂਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ डिस्टर्ब भी कर सकती है। हाँ, क्योंकि ये अपना अपना पैटर्न है सोन का। हाँ जी। हाँ, जिस तरह अपना शुरू तो आदत बना लेने, उसी तरह की आदत बन जाती है। नथिंग रॉन्ग विद दैट, बट लेकिन ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ,
ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੇਟ ਵੱਲ ਸਾਡੀਆਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ that tells us about the patient's constitution. योगा जो योगा पतंजलि योगा ਦੇ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੋ ਕਿ when you fall ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਧਾ ਸੌਵੋ और जो पहली करवट लेनी है वो लेफ्ट साइड लो, पहला टर्न जो लेना है तो वो लेफ्ट साइड लो क्योंकि वो डाइजेशन दे सारे ऑर्गन्स उत्थे हुंदे ने ते लेट द थिंग्स हैपन और फिर तुसी जदों डीप स्लीप विच आ जाओ फिर तुहानू कोई फर्क नहीं पैंदा जिथे मर्जी सो जाओ. दिस इज व्हाट दे टेल अस. या ठीक है मिताली, दूसरी चीज है कि नहीं सर डिफिकल्ट नहीं है, इट इज मैनेजेबल. ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ. नहीं दूसरी चीज ये है कि जिसले आप सोने हैगे हैं साडी बॉडी अपने आप सानू विदिन 20 to 30 मिनट्स अपनी बॉडी जड़ी है साइड नु चेंज करा देंदी है. अगर नहीं करा एब्सोल्युटली ऑटोमेटिकली हो रहा है, क्योंकि अगर नहीं होएगा तो यू विल गेट सोर्स, बेड सोर हो जाते हैगे. सही है. या बिल्कुल बिल्कुल. और कोई क्वेश्चन? आई थिंक वी आर डन. बिल्कुल अब वी आर डन. और आपने आज मेडिटेशन करवाया, बहुत बढ़िया. उसमें एक आपने जो बात कही उसके ऊपर एक गाना भी है. जी सर. तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा. वाह वाह. तो किसी कोई डूबती किनारे पे ले पहुंचा दो, तुमको अपने आप ही किनारा मिल जाएगा. सो दूसरों को जब आप सहायता करते हो, उनकी मदद करते हो, आपके अंदर एक इतनी अच्छी खुशी मिलेगी आपको कि उसका एक अलग सा आनंद होगा. तो इसीलिए हम हमेशा अपनी मीटिंग खत्म करते हो क्या लाइनें गाते हैं? इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा. वाह. Thank you so much Gurudat ji for the awesome session. It was really useful. बहुत सारी आपने यूजफुल टिप्स दी और जब हम नॉलेज मिलती है हमें किसी चीज की तो हमें अपने आप को ठीक करने में बहुत मदद मिलती है, क्योंकि अपने आप को हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता. नॉलेज से हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू जी. और जाते जाते एक और बात कहूंगा कि नेक्स्ट सेशन जो अपना वो गपशप का है. तो आप अपनी खूब गप्पे शप्पे जितनी भी हैं डायरियां लेके आई. ये ना कोई कहे कि वो मेरी डायरी नहीं है इस वक्त. तो मतलब कि आप संतोष जी को कह रहे हो गाने वाने तैयार कर लो, जमील जी आप अपने शेरो शायरी तैयार कर लो, सुरेंद्र जी अपने गाने निकाल लो. आप ये कहना चाह रहे हो सबको, राइट? हाँ ये कह रहे हैं. मीता जी के पास तो होती है ऑल द टाइम एनीवेज. इट्स हियर. यार वो तो हम लोगों की तो ये है ना, दोनों की जो है वो डायरी दिमाग के अंदर घुसी हुई है. संतोष जी की भी ऐसे ही है, उनको भी कोई गाने की डायरी नहीं, ना कोई बनाई है कभी, ना रखी है. बस शुरू हो जाओ फिर शुरू हो जाओ. डॉक्टर साहब अगर किसी ने बांसुरी का सुनना तो मेरी फेसबुक पे सुन सकता है जी, कोई ना कोई चलता मेरा. उसे हमें सुनाइए, लेके आइए. लाइव सुना दो ना सर. लाइव सुना दो सर जी. लाइव भी सुना दूंगा जी, और फेसबुक में चलती है ताराचंद मंजानी है ना, वो तो ठीक है, लेकिन लाइव का एक अलग आनंद होता है. नहीं लाऊंगा, सानू भी ऑनर ला करो दूंगा जी, कर दूंगा जी, कोई नहीं. अगर आप अगले वीकेंड है जी हमारा, आप उसमें आए और कैमरा ऑन करें, हम आपको फेसबुक लाइव पे ले जाएंगे, नो प्रॉब्लम. रेडी होके हाँ, इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन, जो इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन है मेरे ख्याल फेसबुक में लाइव डालिए, अच्छा रहेगा मेरे ख्याल पब्लिक के लिए. वो तो डालना ही है, वो तो डालना ही है. हाँ, लेकिन फेसबुक पे आने के लिए फेस भी तो चाहिए ना. क्या बात करें, हमें तो लाइव दिखाइए. ताराचंद जी जरा मुखड़ा तो दिखा दो जरा, सामने तो आओ छलिए. सामने आई नहीं जी मेरी फोटो. नहीं वो ना लिखे आ रहा है मेरे ख्याल, अवतार सिंह थोड़े बेटे का ना होना.
नहीं, अवतार सिंह मेरा वो है जी दूसरा नाम। अच्छा तारा चंद मंजानी, अवतार सिंह ब्रैकेट में। ओके ये अब- फोटो नहीं जी आई, पता नहीं हुन नहीं मैंने आप कैमरा ऑन करो ना उसमें, आप मैं कैमरा आपको ऑन भेजता हूं करो। मैसेज। पता आपको नहीं जी। आपको मैंने मैसेज भेजा, उसको बटन को दबाओ जो मैसेज मैंने आपको भेजा है। मैसेज में कोई अच्छा हाँ अरे हूँ आ आई गया, अब आ है। गया। वो तिरछी टोपी वाले। अब आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं तो खैर ये ऐसे ही है। अच्छा टोपी सीधी कर ली, वो तिरछी बढ़िया लग रही सी। वो तो हाँ देवना, ये या, देवानंद वाली होगी। बिल्कुल। यस, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी कह रहे देवानंद काटो। नहीं जैसे अगली बारी तुसी हो बंसरी साडे लेके आना। देवानंद और जमील साहब, ले आवांगे। जमील साहब अनम्यूट करो और वादा करो कि आप अपनी जो है खुश खुश मिजाजी वाली थोड़ी सी एक दो कविता सुनाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वाह वाह। मैं हाजिर साईं। आप तो फेसबुक पे जितने एक्टिव रहते हैं ना, उतने एक्टिव हमारे साथ यहाँ पर भी हो जाए। इंशाल्लाह मैं हाजिर सर। जरूर। बहुत अच्छा लगता है जब अपने सब साथ साथ हों, बल्कि आप अपने और जो आपके दोस्त हैं उन्हें भी आप लाइए। ऑल इंशाल्लाह आर वेलकम। चलो क्योंकि मिलिए हमें से फिर कुछ ना कुछ नेक्स्ट वीक, सीखने को मिलता लेट्स मीट नेक्स्ट वीक। ओके, चलिए। है। ओके जी, टेक केयर। मित्रा जी फिर हम ना नेक्स्ट वीक फेसबुक लाइव कर देंगे। जी सर। जी चलो अल्लाह हाफिज। ओ जी ओके और स्मार्ट बन के आ जाएंगे, सानू की है। और हाँ जी, वो हिचकिचाहट खत्म हो गया जी। फेसबुक पे लाइव डालो। ठीक मैं है सर। फेसबुक पे लाइव ही डालता हूँ, मैं बाद में रिकॉर्डिंग की जरूरत ही नहीं समझता, लाइव ही डालता हूँ जी मैं सर, जब जी। भी अपनी बांसुरी या कोई और कोई सब्जेक्ट। अपनी आप बांसुरी तो तैयार कर लो अगले हफ्ते के लिए, आपकी बांसुरी सुनेंगे हम सारे। वो तैयार ही रहती है जी मेरी तो। चलो ठीक वो रेडी है। ओके जी, चलो सर। ठीक है ओके जी, टेक ठीक केयर। है। बाय, जी, गुड Thank you, नाइट। thank you so अल्लाह much for हाफिज। all the members. Thank you for all थैंक the यू, members थैंक those यू, have थैंक यू, joined. Be encouraged to join always. थैंक यू। या Let's increase. इसको लाइव डालें तो बहुत बढ़ जाएगा जी। थैंक यू जी, थैंक यू। Thank you जी। Thank you Dr. साहब for encouraging everyone. आप अच्छे इंजन हैं हमारे। थैंक यू जी। इंजन के साथ बोगियां भी चाहिए होती हैं, कल्ला इंजन तोड़ता रहेगा। हाँ जी वही, हाँ जी उन्होंने पाइप जी कनेक्ट अल्लाह हो जाना ना। हाँ ओके जी, टेक केयर। Okay, thank you. गॉड Thank ब्लेस you. यू। Glad to see you. Thank you.